हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर गुरमत दीवान दी हाजरी भरदियां आप जी ने इलाही गुरबाणी दा कीर्तन सन्मान योग भाई साहब जी तो सरवण कीता है। रात दे दीवान विच आप जी दे समक्ष गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गुरबाणी विच अमृत शब्द की वरतों हजूर ने कई रूपां कई भाव अर्थां विच कीती है। आओ अमृत के संबंध विच ही गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की रोशनी विचों इस दीवान विच आपां विचार कर सकीए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी अनुसार जेड़ी वस्तु अपने नेम मर्यादा अनुसार चलती है वो अपने लिए भी और मनुखी जीवन वास्ते भी सुखदाई है, पर जेड़ी अपने नेम तो अपनी मर्यादा तो खुंज जाए खिंड जाए वो चीज कई बारी दुखदाई बन जाती है। एक छोटी सूक्ष्म वस्तु तो लैके वड आकारियां जितनियां भी चीज़ां ने ये किसी नेम के अधीन चल रही हैं। जे गुरबाणी की रोशनी विच देखिए ते जिस जमीन उपर धरती ते आपां रह रहे हैं इत्थे परमात्मा ने जो सहूलतां बनाईयां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਥਾਪ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਥਾਪ ਰੱਖੀ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਮਰਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਟ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਲਕਾ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਤਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ,
कदी किसी ने कहा कि इन्ना तुसी सानू क्यों बंदिश पाते पे हो, इस सिलेंडर उपर रेगूलेटर लाया, पाइप लाई, पाइप जिस चूल्हे विच लाई अगे स्विच लाया, जदों अग ही वरतनी है तो सीधा गैस सिलेंडर क्यों नहीं असी वरत सकते? उत्तर मिलेगा कि जदों बेमर्यादे हो गए, जिन्हें तेनू जीवन देना है, बेमर्यादी अग तेरे घर नू फूक के रख देगी। जे एक अग ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗ ਬੇਮਰਿਆਦੀ ਹੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दूर ना जाओ, अपने तन विच झाती मारीए, जिस दिन साडे तन विच बेतरतीबी आउंदी है उस दिन बीमारी का जन्म हुंदा। ये मर्यादा विच है। महाराज जी ने बाणी च एक वचन कह लगे, ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। ये शरीर किसे मर्यादा विच बजा है। देखो सिर्फ समझण लई असी सारे बैठे, उस दिन भी बेनती आप जी दे समक्ष कीती सी कि शरीर का मुकम्मल आराम कदी भी नहीं, कुछ हिस्सा ही आराम करता थकिया होया। मैं उस शब्द दोहरान लगा, असी थक के आने, हाथ पैर थके ने, सोने ते आराम मिल रहे, दिमाग की वरतों नहीं करते, सुते अचेत आराम मिल रहा है, दिमाग में सकून मिल रहे। पर इस शरीर के अंदर कुछ अंग ऐसे जेड़े साडे सुत्तियां भी सौंदे नहीं, असी सौने पर हार्ट कदी भी सौंदा नहीं। वो वर्क करेगा, वो काम करेगा। असी सौने पर किडनी कदी सौंदी नहीं, उन्हें अपना काम करना है। श्वास कदी सौंदे नहीं। इस शरीर वाल झाती मारिए, दिल की धड़कन किसी मर्यादा विच है। जे बेमर्यादा हो जाए तो बीमारी नूं जन्म देंदी है। यही हार्ट किते कमजोर हो जाए, यदि पंपिंग जां इहदे धड़कन की जिहड़ी शक्ति है जां गुणा है वो घट जाए ते जां वध जाए ते यक लखत आपां डॉक्टर की निगरानी भी चले जाने। क्यों? उदों कदी किसी ने कहा कि आह मर्यादा की की लोड़ है, असी अपनी जिंदगी आप जीनी है। जे हार्ट मर्यादा कितों थिड़कदा है ते असी किदी निगरानी च रहीए ते जिंदगी है। जदों बंदा जिंदगी पक्षों बाहरमुखी पक्षों थिड़कदा है, उदों गुरु की निगरानी विच रहे तां ही जिंदगी है। हार्ट की एक मर्यादा है, किसी तरतीब अनुसार चल रहे हैं। किडनी की कोई मर्यादा है, श्वासां की कोई मर्यादा है। इत्थों तक कि साडे विच जिहड़ा खून का सर्कल है, इहदा प्रेशर, इहदी भी मर्यादा है। ब्लड प्रेशर वध जाए तां भी मौत, जे घट जाए तो तां भी बीमारी। कि उदों सानूं चेते नहीं आउंदा कि जे बेमर्यादा होया खून मौत लिया सकता है, तो जिन्हें सारी जिंदगी बेमर्यादी कर दी ओहदा की बनेगा। मेरे सतगुरु ने एक कृपा की, तत्व भी मर्यादा विच ने। सारे असी जिहड़े कथा करने एको गल कहने आ, पंच तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी। ये पंजां तत्तां दे सुभाव एक दूजे दे विरोधी ने। पानी ते अग ते टिकेगी, अग ते हवा दा किते समेल है नहीं। पर हर तत्त जिहड़ा परमात्मा ने मर्यादा विच रखे, तत्तां दी तरतीबी ये जिंदगी है। ते तत् खिंड जान ते मौत है। एक उर्दू दे विद्वान ने जिंदगी मौत दे अर्थ ये कीते सन। वो लिखता है जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूरे तरतीब, अनासर में ज़हूरे तरतीब, तत्तां दी तरतीब मर्यादा दा नाम जिंदगी है। ते मौत क्या है, इनकी आजजा का परेशान होना। जदों तत्त खिंड जान, बेमर्यादा हो जान, उन्हों मौत कहने आ। इनू बाबा जी ने क्या, पवन है मैं पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवन हारे की, कवन टेक पर मर्यादे तो बाहर हुए तत्त वो मौत बन जाते हैं। गुरु के सिखो, धन गुरु नानक साहब जी ने साडे ते कृपालता की। वो अन मत वालियां नूं, मैं मन मत नहीं, अन मत वालियां लोकां नूं मिले, उन्हां दे बाहर दे चिन्ह देखे, पर बाहर दे चिन्हां नूं देख के दवैश अधीन खंडन नहीं। देखो असीं कई वारी कथा करदे कहने कि पंडित नूं आ कह दिता, मुल्ला नूं आ कह दिता, काजी नूं आ कह दिता। भाई गुरसिखो याद रखियो, जो मुल्ला नूं, पंडित नूं, काजी नूं कहे, सिखा चेते रखी, जे तेरे अंदर भी औगण आउंदे दिसे बाबा ने, तेनों नहीं किया हो। दवैश अधीन शब्द नहीं। उत्थे भी बेनती करके आए हैं,
गुरु ग्रंथ साहिब विच बाहर दे चिन्ह किसी का इन्ना जिक्र महानता नहीं मैनूं बख्श दिया जे, पर उन्हां चिन्हां नूं जिस ढंग नाल बाबा जी ने व्याख्या की, जे किते कोई वो धारण कर लवे, सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदू, सच्चा जोगी बन सकता है। एक हिंदू जनेऊ पांदा है, तेरा धागा वट के पाया उन्हें, पर महाराज जी ने क्या बाहर दे चिन्ह तेरी पहचान ने। तू ब्राह्मण है, तू खत्री है, तू वैश्य है, पर एक गल दस कि बाहर दा धागा तां तू पाया, जल पानी सोच वेले तू अपने कन्ना को लटका लेना, पर मैनू दस जेड़े धागा तू चमड़ी उत्ते पाया, इस धागे नूं अपनियां इंद्रियां उत्ते पा के नूं काबू कीता। हुण देखो अर्थ कैसे कर दिते। महाराज कहते ने जीव ते धागा नहीं, बड़बोली बोली जा रही है, कन्ना ते सूत्र नहीं, गंदन वैण निंदिया चुगली सुनी जा रहे ने, हत्थां ते धागा नहीं कि ये बुरे कर्म करते ने, पैरों ते धागा नहीं ये माड़े रस्ते ते तुर रहे ने। ओ भलिया सजना, तू बाहरों धागा पा के लोकां नूं चानण दा भुलेखा पाने। महाराज कहते सब तो वड्डी हैरानगी की गल है कि जिस कमरे के बाहर लाइटां जगदियां होण, अंदर घुप हनेरा होवे, अंदर टिका किवें मिल सके। ये वचन है कि तग ना इंद्री, तग ना नारी, आशा की वाह है बाहर दा चिन्ह, आउणा अमृत संबंधी है। तग ना इंद्री, तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी, तग ना पैरी, तग ना हथी, तग ना जेवा, तग ना अखी, वे तग्गा आपे वतै। जे तुसी दलील ना समझिए भी उन्हें धागा पाया है, तो बाबा जी कहते नहीं वे तग्गा है, ਇਹਦਾ मतलब बाहर ते धागे दा चिन्ह मौजूद है, पर अंदर वाले गुण ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी नहीं। जे चिन्ह है अंदर गुण नहीं तो वेतग्गा है। महाराज जी ने क्या वेतग्गा आपे वतै, वट धागे अवरा घतै, लै पहाड़ करे विआह, कट कागल दसै राह, सुन वेखो लोका एहो विडान, मन अंधा नाउ सुजान। बाहरों सियाणे पर अंदर खनेरा है। सिर्फ एक बेनती खोल, महाराज जी ने देखो किड्डी कृपा की। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़ांगे ना, सब तो ज्यादा जोर सच्चे पातशाह जी ने अंदर नूं धोण दा कीता है। जे अंदर दी सफाई नहीं, अंदरों जुड़े नहीं, मैं खिमा करियो कई बारी असी बाहर दी गल करदियां इन्ने दूर निकल जाते हैं कि अपने अंतरी भी जिहड़े गुण ने उन्हां नूं भुल जांदे। ते जे बंदा बाहर दी गल करी जाए, अंदर वाली खेड वापरे ना, ते कि बाहर दीयां गल्लां नाल कदी छुटकारा हो सकदा। गुरु साहिब दे बचन ने पवित्र बचन है कि खिंदू कह कर खिंदू आवे, सूत जनेऊ पढ़ गल पावे, सूत पाए करे बुराई, ते बाबा जी कहते नाता धोता थाए ना पाए। हुण सूत पाए करे बुराई, नाता धोते का अर्थ की ने? वो चौंके ते चढ़दे नहांदा है, धोतियां दो रखदा है, गायत्री मंत्र पढ़दे सिर नूं ढकदा है, गऊ दे गोबर नाल चौंके नूं धोंदा है, साफ करदा है चौंके ते गऊ दा गोबर पोचा फेरदा है। महाराज कहते हैं इन्ना कुछ बाहरों करता रहा, पर चेते रखी ये सारा व्यर्थ चला गया, अंदर का चौंका तो मैल नाल भरिया। सतगुरु जी ने एक कृपा की, जिथों कल असीं गल शुरू की सी, अमृत कोई ऐसा शरीर नहीं जिहदे विच परमात्मा ने नहीं टिकाया। ये भी बेनती करते हैं कि कोई शरीर ऐसा नहीं जिहदे विच वाहिगुरु जी का नाम नहीं टिकिया। बाबा जी ने तो सीधे जे शब्द कहे कि जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही कोथा। हर शरीर विच उस प्यारे दी जोत है, ओदी कृपा है, ओदियां शक्तियां ने, वो खेड वापरदी पई है। पर बेनती ये वे कि जदों उसनूं गुरु दे शब्द राही अपनी जिंदगी विच कोई कमांदा है, ते गुर प्रसाद नाल ओदे अंदरों वो अमृत प्रगट हुंदा। इत्थे सिर्फ बाणी विचों ही उदाहरणां आपां सारियां लवांगे। गुरु सानू अमृत की दात दी, वैसाखी आई है, हर प्रचारक ने अपनी सोच मुताबक अर्थ करने ने। किसे कहना गुरु ने रुलदियां नूं थां दिती, कोई शक नहीं, बड़ी वड्डी गल है। इन गरीब सिंगन को देऊं पातशाही, ये याद करे हमरी गुरियाई। बड़ी वड्डी गल सी कि जाकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये बारमुखी पक है, बड़ी वड्डी क्रांति।
किसी ने अर्थ करने ने कि गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेले की खेड वरता दी। इत्थे इनू खंगता च नहीं लिजाना कि गुरु जी ने अमृत दिता, फिर अमृत की दात लई, देखो गुरु चेला बन गया, चेला गुरु बन गया। ये तो गुरु का तरस है। मैनू बख्श दिओ जे वो नाम ही कहते तो फिर भी गुरु गोबिंद सिंह गुरु ही है। उन्होंने कोई नहीं सी भी ये जरूरी है, पर उन्हें एक कृपालता की। बाबे नानक की चलाई कोई मर्यादा नू धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने मुकम्मलता दे दी। गुर चेले की एक खेड वरती सी करतारपुर की धरती ते। सिर्फ एक खेने के बारे जिक्र करके इस तो अगे तुरना है कि बाबा लहणा साहब धन गुरु नानक साहब जी के चरणों में सन 1532 नूं आए सन। हजूर की उम्र बाबा लहणा साहब जी की उस वक्त 28 साल की सी। 1539 तक करतारपुर बाबे नानक के चरणों में उन्होंने हुक्म मनिया ते हुक्म मनण की सिक्खी नूं कमाया। 1539 नूं धन गुरु नानक साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार अपने तो उम्र करके 35 साल छोटे, बाबा लहणा साहब 35 साल छोटे ने। 1469 ते 1504, गुरु नानक साहब 1469 ते बाबा लहणा साहब 1504। 35 साल उम्र करके अपने तो छोटे नूं अपनी जोत टिका दी। क्योंकि जदों जोत जोत नाल मिलदी है उदों वड्डा छोटापन नहीं, बस जेड़ा बुझिया है वही खनेरा है, पर जेड़ा जगदा होया दूजे दीवे नूं जगा दे ते दोनां नूं इकट्ठियां करके देखियो जोत दोनां दी मिल जाती। धन गुरु नानक साहब जी ने कृपा की, अपनी जोत बाबा लहणा साहब दे अंदर टिकाई ते जान तो बाद नहीं। गुरु ग्रंथ साहब विच बाबे सत्ता बलवंड जी की वार विच पहली पौड़ी ये वे कि नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीमद है, दे गुणा सत भैन पाराव है, पार अंगत दान पड़ीमद है। अगले बचन ने नानक राज चलाया, सच कोट सतानी नीमद है, लहने धरिउन छत सिर कर सिफती अमृत पीमद है। मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्रागुवै जीद है। अगली तो कह गुर, गुर दे रारे नूं सिहारी लगी है। गुरु ने धन गुरु नानक साहब जी ने चेले रह रास की, रह रास दे अखरी अर्थ ने नमस्कार करनी, मत्था टेकना। गुर चेले रह रास की, गुरु ने अपने चेले सामने नमस्कार कर दी। कदों नानक सलामत थीम दे, जिन्ने मत्था टेकिया ओदा जे शरीर कायम है। सलामत थीम दे मीनस के जिउंदे जी। भाई साहब ने भी कहा कि थापिया लहणा जीवन है, गुरे आई सिर छत्र फिराया। गुरु जी ने एक खेड वरताई कि अपने चेले नूं जिउंदे जी अपनी थां ते थाप दिता ते नाल बचन कीते गुरु ग्रंथ साहब जी ने। क्योंकि अज ये भी उत्थे चल रहा इंडिया भी, तुसीं सारे नैट नाल जुड़े हो। नहीं जी बाबे नानक ने तां गद्दी नहीं दित्ती, अगां धक्के नाल लै गए। ओ भाई गुरसिखो, धन गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकने हैं। सब तो वड्डी बदकिस्मती उस बंदे दी है जिहड़ा मत्था भी टेकदा, जिन्हों मत्था टेकदा उहदे उत्ते शक कर लग पैंदा। बाबा जी ने बाणी च बचन किया, कह लगे मत्था भी टेके अरदासां भी करे ते परत के उसे जिहदे अगे मत्था टेकदा उहदे अगे खुजतां भी करे ते खुजतां करन वाला बंदा जड़ों पट्टिया जांदा। असीं एक श्लोक एक पढ़ने हैं, सलाम जवाब दोवें करे दोनों, मुंडो कुत्था जाए नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। गुरु जी ने एक खेत नवी वरताई, उन्होंने चेले नूं गुरु बना दिता, आप मत्था टेकिया ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन आउंदा है कि जोत समाणी जोत माहे आप आपै सेती मिक्योन। मिकना शब्द अपना बहुत पुराना है पेंडू। मिकना चुनना, जदों न्याणे मीठी खेडदे सन, कबड्डी खेडदे सन ते गल कहंदे सन अपने अपने साथी मिक लवो, चुन लवो। ते जदों मिकदे सन उदों एक गल तो सुचेत रहिंदे सन कि उम्र बराबर दी होवे, ताकत करके दो दो बंदे बराबर दे होण, एक छोटा एक वड्डा, एक दी उम्र 25 साल ते दूजा 10 साल दा,
कि ਉਹਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एक साथी मिक्या जाएगा? बिल्कुल नहीं। शरीरक तौर ते उम्र घट वध नहीं, ताकत घट वध नहीं, बराबर जे गुण। एक जना एक धड़ा मिकदा सी, दूजा दूजा। महाराज कहंदे ने भाई दुनिया दी खेड खेडण वास्ते शरीर इक्को जिहा, शक्ति इक्को जी, बल इक्को जिहा होवे तां दो विचों एक मिक्या जांदा है। कहण लगे बाबा लैणा उम्र करके भावें 35 साल छोटे ने, पर मैं इन्हों मिक लिया। जिहड़ी जोत मेरे अंदर वरदी पई है लहणे अंदर वरतन लग पे। जोत समाणी जोत माहे, आप आपै सेती मिक्योन। सिखा पुत्रा घोह कै, सब उम्मत वेखो जे क्योन। ते महाराज कहते ने जा सुदोष ता लहणा टिक्यो। अखीर ते बाबा लहणा साहब जी इत्थे गुरचेले दी खेड वापरी है। धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी का वक्त आया है। रात भी अर्ज की अमृत नूं गुरमुखो फिरका प्रस्ती नहीं, अमृत नूं नफरत का रूप नहीं देना। मेरी एक बेनती जे, कई बार जिन्हें अजे अमृत पान नहीं किया हुंदा असी उस बंदे नाल बोलना भी पसंद नहीं करते। मैं उत्थे भी अर्ज करके आया वो डॉक्टर ही कहता जिहड़ा मरीजों तो नफरत कर लग पा। डॉक्टर तो प्यार करता है। जे एक बंदा अजे चलिया नहीं, प्रेम की भाषा तो जिंदगी बदल सकती है। दुनिया भर दियां लहरां पढ़ के तुसी देख लो, जिथे जालमाना बिरती नाल धर्म का प्रचार किया गया, कुछ समय तो बाद हकीकत विच वो भयानक हिंसा का रूप धारण कर गया। तो जिथे प्रेम करके धर्म नूं प्रचारिया गया, उत्थे बिना पुछिया भी गुरु तो अपनी जिंदगियां कुर्बान करना। सिर्फ एक प्रेम है जिहड़ा सानू फैला सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, उन्होंने अमृत की दात दी, नाल सानू रहतां दित्तियां, इस करके कि जिंदगी तरतीब विच रहे ते किसी मंजिल ते पहुंच जाएगा। बेतरतीबे होए बेमर्यादा होए बंदे जिहड़े ने वो जिंदगी की बाजी खार जाते हैं। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच गुरसिख की परिभाषा, साध की परिभाषा, ब्रह्म ज्ञानी की डेफिनेशन, संत की डेफिनेशन, गुरमुख की परिभाषा सारियां दित्तियां ने। हालांकि अंदर की रहत हर बंदा आप जानता है जां गुरु जानता है, पर कुछ को बाहर के गुण वेख के महाराज जी ने कहा जिदे चो बाहर आ गुण दिसणगे ना, सच जानी वो सिख होवेगा, वो संत होवेगा, वो साध होवेगा। धन गुरु रामदास जी ने सब तो पहला जिहड़ा सिख दा जीवन लिखिया गौड़ी की वार विच, वो तुहानूं सब नूं पता एक श्लोक है। वो बाहरमुखी भी है ते अंदरूनी भी है। बाहरमुखी शरीर का उठना, इशनान करना, बोल के बाणी पढ़नी, ते अंतरमुखी है कि उहदे सवासां विचों कदी प्यारे दी याद नहीं विसरदी। वो असीं पढ़ने हैं कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए, ये परिभाषा है। जिहड़ा अखांदा मैं बाबे नानक दा सिख हाँ, मैं गुरु दा सिख हाँ, सब तो पहला गुण इहदा ओह वे कि वो उद्यम करके अमृत वेले उठ के गुरु गुरु जपदा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम ध्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख ले जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ध्यावै, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। सतगुरु ये धक्के नाल किसे नूं दात मिलदी? कहण लगे नहीं भाई, जिस नूं दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै, तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावै। हुण आप जपे अपना निजी जीवन है, अवरै जपावै ये जिहड़ा ये साडा समाजिक बहुरूनी है। आप जपदा उन्हें खुद कमाई एकांत करनी है, ते जदों दूजियां नूं जपान तुरदा ओहदा बाहरमुखी महाराज कहंदे ने उस सिख दे चरनां दी धूड़ मिल जाए। पर इत्थे मैं बेनती करां, अवरै जपावै खीरली तो के, पहलियां तुकां नूं अमली जामा पहनाया है ते तां अवरै जपावै। ये नहीं आप 8 बजे उठे संगत च कहे आओ वाहिगुरू जपीए, नहीं, पहला ये कुछ कमाए, प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, फिर अखीर ते ऐसी कृपा मालक करे वो दूजियां नूं भी जपावे। कि सिख दी रह दे दित्ती। हुण संत शब्द है, देखो शब्दां नाल नफरत ना करिए। अज जदों कोई कौम
कोई समाज, कोई वर्ग शब्दां दी राजनीति खेडन लग पैंदा है ते शब्दां तो हेठ करन लग पैंदा है। खिमा करियो, वो रुखा कठोर ते पतन वाले पासे तुर पैंदा। शब्द संत है, शब्द साध है। कोई शक नहीं कि बाबे दे वेले भी सी इस शब्द दे थले अनेकां लोकां ने अधर्म कुकर्म शब्द भी वरत लईए ते कोई अत कथनी नहीं कीते, पर सच्चाई नूं कदी भुलिए ना। जे मुलम्मा है, जे नकल है बाजार विच विकदी, आर्टिफिशियल है, ते चेते रखियो वो किसे असली विचों पैदा होया है। ते दा मतलब ये नहीं कि नकली देख के आपां असलियां नूं भी खंडन कर दें। सिर्फ एक बेनती है, संत किसे लिबास का नाम नहीं, गल चली रहत दी। महाराज जी ने गुरसिख दी रहत बाणी च दसी। संत दी रहत की? संत केवल चोले का नाम नहीं, संत केवल बाहर दियां चिकनियां चोपड़ियां गल्लां दा नाम नहीं। ते संत नूं कोई जरूरत नहीं कि चोखा वड्डा इकट्ठ करके कह लोगों मैनूं सुनो। संत दा जीवन इन्ना पवित्र है, चंदन ते गुलाब दा फुल जिथे भी खलो जाए लंघदियां नूं सुगंधी दियां लपटां दे पैंदा है। जिहड़ा आत्मक जीवन जींदा है, ना भी बोले जिथे बैठेगा ओहदे जीवन दा असर दूजे ते जरूर होवे। चंदन ते संत इथों तक कि चंदन नूं लकड़ कटदियां कुहाड़े नाल कोई वड्डे, वो वड्डण वाले कुहाड़े दे मुंह विच भी सुगंधी भर दिंदा है। सिर्फ एक समझण लई है। महाराज जी ने कहा संत कौन? गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत शब्द ने, पर एक शब्द मैं चुनिया उच रहत क्या शब्द महाराज जी ने कह लगे, संत ओ वे आठ पैर निकट कर जाने। अठे पैर वाहिगुरु अंग संग नूं पासे है, तां साडे अंग संग परमात्मा ते है, पर बंदा नहीं समझदा मेरे नाल है। भाई साहब भाई वीर सिंह हुणी वो जदों नाम की गल करते हैं, एक गल कहते हैं, नाम जपण वालिया पहला अंदर नूं ये दृढ़ कर कि जिन्नू मैं जपन तुरिया वो है, एवें खनेरे च तीर ना चला। ये विश्वास पैदा कर है। ते यही कारण जदों अरदास करने आ ते दो दातां सी मंगने आ कि विसाह दान ते भरोसा दान, कि ये दोनों शब्दों के अर्थ इको नहीं। विसाह ते भरोसा जे थोड़ा जा नेड़े देखांगे इंज लगेगा जिवें पर्यावाची शब्द। विसाह दान भरोसा दान नहीं, अंतरी भाव कुछ होर ने। विसाह दान का अर्थ मेरे अंदर विश्वास पैदा करके परमात्मा है। हे प्रभु, हे सतगुरु, ये विश्वास पैदा हो जाए तू है। ते भरोसे दान का अर्थ है वे कला है नहीं, जिथे मैं जाना तू मेरे नाल है। इनू फिर बेनती नूं समझण लई असी बैठे हैं, साडे परिवार विचों बहुत जी घरां विच ने जां किसे अपने देश विच बैठे। विसाह दान का अर्थ वो है ने, पर साडे कोल नहीं, वर्तमान भी साडे नाल नहीं। हालांकि साडा ख्याल भी उधर नहीं जाता, पर वो है दा मतलब ओदी खोंद है। परमात्मा इस तरह का है नहीं कि जिवें बच्चे घर ने आपां इत्थे बैठे हाँ, माता पिता घर ने ते असी इत्थे हाँ। परमात्मा केवल किसे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। दे अर्थ धरती का खिता नहीं है, दा अर्थ वो हर थां ते मौजूद है। ते भरोसे का अर्थ मैनूं यकीन करा दो मेरे नाल भी है, वो मेरे साथ है। महाराज जी ने कहा संत होवे जिहड़ा अठे पैर ये जाने परमात्मा नेड़े है, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। नाम ओदी जिंदगी का सहारा है। ते गुरमुखो नाम एक ऐसी खेड है, जिन्नी देर तक सिख नाम नाल नहीं जुड़दा अंदर दी चढ़दी कला नहीं। नाम विचों शक्ति है। पिछले दिनों तो अर्ज कर रहे हैं कि सिमरन नरजिंद नहीं। महाराज जी ने कहा कि हर सिमरन में आप निरंकारा, आप निरंकारा दर्थ की सिमरन विच ओ आप ओदी शक्ति वरतदी है, ओदी कला वरतदी है। महाराज जी ने कहा संत ओ जिहड़ा अठे पैर नाम तो बिना ओदा कोई आधार नहीं, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार। संत रहत सुनो मेरे भाई, उहाँ की महिमा कथन न जाई। रहत है संत दी वर्तन जाकै केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र छत्र जाकै एक समाने,
प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग काटन हारा वाहिगुरु। एडा वड्डा जीवन, करोड़ा पापियां दे पाप कट्टन दी समर्था है जीवन वाले विच। कोट कोट अग काटन हारा, सो दुख दूर करन जी के दातारा। संत होवे जिहड़ा सूर बीर बचन का बली, कौला बपरी संती छली। संत दी परिभाषा जे असीं साध दी परिभाषा पढ़ी, वैसे तो महाराज जी ने आ खट लक्षण दिते ने श्लोक संस्कृति विच। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यान सर्वत्र पूर्ण ज्ञान सम दुख सुखंग जुगत निर्बल नरमैल ने भोजन गोपाल कीर्तन अल्प माया जल कमल रहता है दयालन सर्वत्र जिया। ये जेडे तकरीबन महाराज जी ने 6 दिते ने गुण। पर जे असी सौखे लभने हुण साध दे अर्थ की ने, ते भाई गुरदास साहब ने ना एक तुक विच अर्थ कर दिते। कह लगे 9 द्वारे साध 9 दरवाजे साध साध सदाया। देखो साध साध 2 शब्द ने। जिन्हें अपने 9 इंद्रियां नूं साध लिया वो साध है, ते जिदियां 2 चमकदियां अखां ही अजे काबू नहीं, वो कादा साध बनिया। जिन्हें इंद्रियां ते काबू पाया। सीधियां जियां उदाहरणा जे ब्रह्म ज्ञानी की गल की, कह लगे जिदे जीवन विचों 3 झलका निकल, अंदर भी सच, मूँह विच भी सच, ते तीजी गल ओदियां अखां विच भी सच। मन साचा, मुख पहला मन फिर मुख ते फिर अखां। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै, पेखण दा संबंध अखां नाल। अवर ना पेखै एक बिन कोए, नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जे भगत की परिभाषा ही रहती है ना, सारे गुण ने। जे भगत की आई तो महाराज जी ने क्या मत खुंदी होए ए आना, तान खुंदा होए निताना, अण खुंदा आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। इहो जे जीवन वाला धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडे ते तरस कीता। मैं अमृत नूं केवल बाहर मुखी जज्बात नाल नहीं, मेरी बेनती अमृत एक पारस कला है। अमृत एक तब्दीली का नाम है। अमृत एक जिंदगी दे परन का नाम है। इन अमृत एक आदमी ने अपना आपा गुरु सामने भेंट करना है। अमृत गुरु गोबिंद सिंह का पल्ला पकड़ना है। भावें असीं कवितावां रचन वाले कह दिता, महाराज जी ने 5 नूं अमृत दिता, ते फिर 5 नूं क्या मैनू दिओ, उन्हें क्या सानू की दोगे, तो सिर्फ दंद कथावां ने। ओ भाई सिखो जिन्हें अमृत की दात दे के ये क्या होना है, मैनू अमृत दो, सिख पूछेगा तू सानू की दे। एडी वड्डी शक्ति दे देनी उस वेले, इनू बारीकी ना देखियो। गुरु अमृत दे रहे ने, गुरु पद की खेड वरता रहे ने, ते ओही गुरु थले खलो के कहते ने मैनू अमृत की दात दिओ। भाई गुरसिखो जदों ये शब्द कहे उन्हां दे अंदर वह तुरे। इत्थे गुर प्रताप सूरी च लिखे है, महाराज जी नूं क्या कि सतगुरु आप तां दात दिती। कह लगे नहीं भाई, मैं तां ओही खेड मुकम्मल कर लगा जिहड़ी करतारपुर तो शुरू हुई सी। की कह लगे खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। खालसा गुरु, गुरु खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीनियो। शंक ना करीजै सावधान होए दीजै, अब अमृत छकावो मोहे जैसे तुम लिखियो। जिस तरह तुसी दात ली, हुण अमृत की दात देंदियां कुछ करैतां भाई साहब ने दसिया श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा अनुसार ते सजाई जे धुरे नाल जुड़ के प्यारिओ सुख जे मेरी एक बेनती। सतगुरु ने कृपा की, कौम ओनू कहा जाता है जिदे कोल 3 चीज़ां होण। एक ओदे कोल पहली गल अपनी जबान होवे, अपनी लिपि होवे, बोली कह लो, लिपि आपां लिखण नूं कहांगे। अपनी जबान, अपनी बोली, अपने अखर, ते दूजा ओदी अगवाई वास्ते ओदे कोल ग्रंथ होवे, ते तीसरा ओदा कोई केंद्री स्थान होवे। जिन्हां कौमां कोले 3 चीज़ां ने वो समाज दे संसार दे नक्शे उत्ते तरक्की करदियां। धुरा है साडा। जदों अमृत की दात दिती, कुछ कर्म करने वास्ते क्या, कुछ कर्मां तो सदा लई वर्ज दिता। करन वाले कर्मां विच असीं 5 कि सिर्फ कहने हैं कि कड़ा, केश, कंघा, कशहरा, कृपान,
ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਉਹਨੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਭੈਣੇ ਇਸ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਆਹ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਤਨ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਤਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਾਤਾ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੀਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨਕੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਹੀਂ ਭੇਦ। ਕੌਣ ਖਾਲਸਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਬ ਸੰयम, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੈ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, पूर्ण जोत जगह घट में। पर प्यारियो जपेगा ते जगेगी। सवैये की शुरुआत जपे तो है, जागृत जोत जपेगा, फिर पूर्ण जोत जगह घट में, तब खालस ताहे न खालस जाने। अमृत की दात लैके शब्द की कमाई, फिर सतगुरु की बाणी की रोशनी में जड़ी रहत। महाराज जी ने कहा कि ऐसा काम मूले ना कीचा जित अंत पुछो ता ये रहती है, ऐसी कला ना खेडी है जी दरगाह गया हारी है, ये रहती है। जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार, ये रहती है। जदों असीं पढ़ने अवगुण छाड़ गुणा को धावो, ये सारे सतगुरु ने सानू बाहरूनी गुण धारण करने वास्ते कहा। ते सच्चाई है जोत गुरु ग्रंथ साहिब विच सारे असीं मानते हैं। ते भाई गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, इसनूं अतकथनी ना समझियो। ये प्रकाश केवल रुमाले तक नहीं, जदों सिख शब्द कमांदा है तो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सिख दे अंदर हो जाता। किवें? प्रोफैसर पूर्ण सिंह हुणां ने एक लेख लिखिया सी, उस लेख का जिहड़ा सरलेख है कलगी वाले की छवि, वो वाकई पढ़न वाला है।
क्योंकि प्रोफैसर पूरन सिंह ओदी उडारी अपनी है। उन्हें गल कही तो वह ख्याल ही है, ख्यालों की चित्रण किया उन्हें। कहता मन च आया कि सारे गुरु गोबिंद सिंह जी दियां सिफतां करते हैं तो मैं धन गुरु गोबिंद सिंह जी की छवि तस्वीर बनाना वा। विचों विचों दी शब्दावली मैं लई है। कहता मैं रंगां दा डब्बा लिया, पेपर लिया, पेंसिल लई, सारा समान लैके मन ने कहा भी आनंदपुर के नेड़े सतलुज वगदा है तो धन गुरु गोबिंद सिंह कई बारी आर पार होए, सतलुज के किनारे बह के क्यों ना बनावा कलगी वाले की छवि, ख्याल चित्रे बनावा। देखो उस बंदे की उडारी। कहता मूर्त बनाई, फिर जल प्रवाह कर दी। मन ने क्या नहीं, अकाल दे सुत की मूर्त ये नहीं हो सकती। कहता मैं बनाई जावां, सतलुज विच रोड़ी जावां ते लोग देखण वाले एक दिन कह दिता मोया अद्धी जिंदगी मूर्ता सिखदा रहा, अंधी जिंदगी बनांदा रहा, पर मर जाने तो बनी एक भी ना। अपने लिए शब्द वर्तनी एक भी ना बनी। कहता मैं पूछ लिया भरावा, ओदी वार्तक ओदी कविता विच भी चिंगारियां ना, दस सतलुज तेरे विचों बड़ी बड़ी कलगी वाले आर पर आए जदों लंघे सन, सतगुरु दा स्वरूप दियां झलकां तू पानी सजिंदे मैनू दस। कहंदा सतलुज चुप सी। मन ने क्या महाराज ने अपनी बाणी विच यमुना दा जिक्र कीता एक थां ते, देश चाल हम ते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा, अनक भांत के पेट तमाशा, कलंदरी मीन्स यमुना। कि यमुना के किनारे कवियां दे दरबार सजे ते जेड़े बंदियां नू कोई नहीं सी जानदा, मेरे कलगियां वाले ने उन्हां दीयां झोलियां भर दित्तियां। ओडा वड्डा दानी किहड़ा होना भाई। एक सिर्फ हजीर एक कवि 52 कवियां विचों हर एक दी रचना भी है, पर कविता संगीत चित्रकारी एक कोमल हुनर केवल वो जानता है जिहड़ा सूक्ष्म है। मोटी बुद्धि वाला तो कई बार कहता है कि लोग गल्लां करी जाते। और रागियां ने औरंगजेब वेले जनाजा कढ़िया राग दा, क्योंकि कोमल हुनर सी। उन्हें प्रोटेस्ट किया भी असी जनाजा कढ़न लगे हाँ, वो एडा हो जा भैड़ा कठोर कहना हुण जनाजा ते कढ़ लिया, इहो जिहा दफनाओ कई सदियां निकली ना बाहर। कोमल हुनर है। हजूर दा दरबार सजे मैं अपने प्रकरण विच ही रहना है, गुरु दा प्रकाश रहतवान सिंह दे अंदर है। पौंटा साहब कवि दरबार सजे है। एक सज्जन आया, उसका नाम सी कवि दा हीर, कपड़े ओदे पाटे जाए, जिहड़ा टाइम वंड रहा सी उन्होंने कहंदा मैं कविता बोलनी है। हजूर नूं पुछया, महाराज जी ने क्या दो टाइम वक्त दिता जाए। जदों ओदा वक्त आया, समा आया, उन्हें की कीता, जिस थां ते खलो के बोलना सी बजाए उत्ते खलोण दे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे सामने जाके बैठका मारन लग पिया। थापड़े मारे जिवें पहलवान उतरदे, बैठका मारे, थापड़े मारे। हुण कई सिख बैठे विच मन च आया भी ये माड़चू जिहा बंदा हरकतां करदा, पहलवानां वालियां अकारा जिहा शरीर, हड्डियां दी मुठ। एक ने कहा भी तू कवि है कि पहलवान है? कहंदा हाँ तां कवि। हरकतां कह लगे तू पहलवान वालियां करना। वो धन गुरु गोबिंद सिंह जी के चेहरे वाल देख के उन्हें एक कविता कही। कहंदा भाई रब ने हुनर बड़ा दिता सी, पर कदरदान कोई नहीं सी मिलिया। मेरे कपड़े पाटे ने, घर मेरे रोटी नहीं पकदी, मैं थापड़े तां मारे ने, मैं डंड तां कड्डे ने, मैं अज गरीबी नू कंगालता नू आवाज मार के कहना जे तेरे कोल ताकत है ते मेरी पिठ ला के दिखा, अज जिदे दरबार च आ गया दाना दे तीर मार मार के तेरा मुंह गवा देवे। उन्हें जेडे मैनू बड़ी चंगे लगे। ओदी रचना विचों दो तुकां ने, कहंदे ने दारद कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज, दरिद्रता मीन्स कंगालता गरीबी। दारद कपूत तेरो मरनो बन्यो है आज, करके सलाम खूजो कवि हीर सो, नातरु गोबिंद सिंह विलक करेंगे तो टूक टूक मारे गाडे दानन के तीर सो। जे दान दा तीर मार दिता तेरे प्राण निकल जाने, मैनू छड़। महाराज जी ने क्या कविता छड़, पहला इहदी रोटी दा प्रबंध करो, इहदे रोटी दा इहदी रहश दा प्रबंध करो। उस कलंदरी तट दे किनारे चौजी प्रीतम ने अकाल उस्तत दी बाणी, जमी तुही जमा तुही
मकी तुही, मका तुही, अपू तुही, अपय तुही, अछू तुही, अछय तुही, जतस तुही, ब्रतस तुही, गतस तुही, मतस तुही। पूरन सिंह कहता है तेरे किनारे तो तू ही दी आवाज़ां निकलियां। मैनू दस जदों कलगी वाला तू ही कहंदा सी चेहरा किहो जिहा सी, तेनू तां छूह मिली। कहंदा यमुना भी चुप, कहंदा मन च आया चल पटना साहिब चलीए, गंगा भी वगदी पई है जे। कहंदा गंगा नूं पुछया तेरे किनारे बड़ियां नूं निवाजिया, तेनू तां कंगण भी दे के गए, सट्टे तेरे विच। दस जदों कंगण सट्टे दोबारा आए ते दूजा कंगण सट्टदियां की सी, हजूर बाला प्रीतम दा चेहरा किवें, छवि किवें, ते जदों शिव दत्त नूं निवाजिया उदों किवें। कहंदा गंगा भी चुप। मान ने कहा ना सतलुज ना यमुना ना गंगा, चल गोदावरी नूं पुछी, उहदे किनारे भी बैठे सी, उडारी है ना। वो कहंदा गोदावरी नूं पुछया तेरे कोल हीरा सटिया, तेरे विच नगीना सटिया, तेरे किनारे बैठ के हिंदुस्तान दे बादशाह दा हंकार मल के रख दिता। एक हीरा जिहड़ा तू चुक्की फिरना, गुरु दियां नजरां विच सारी नदी हीरे बन जाती। महाराज जदों हीरा सटिया, बादशाह दा हंकार टुटिया, गुरु गोबिंद सिंह दे चेहरे दी लाली कैसी सी। कहंदा वो भी बंद, कुछ नहीं बोलती गोदावरी। मन ने कहा 60-90 रंगां दे। कहंदा मैं उत्थे चला गया जिथे गुरु ग्रंथ साहिब ने नूं गुरगद्दी दित्ती सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। देखो डारी उहदी। कहंदा शस्त्रां नूं पुछया, ਉਹ भी खामोश। फिर मन च आया क्यों नहीं मेरे नाल सारे बोलते। कहंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने मत्था टेकिया ते आवाज आई जिन्हां नूं पुछण गया है इन्हां नूं छूह मिली है गुरु गोबिंद सिंह दी, जिन्हों एक बारी छूह मिल जाए बोलण जोगा नहीं रही। वो अंदर रस विच मगन है, की बोलेगा। कहंदा मन ने कहा चल गुरु ग्रंथ साहिब, देखो वो सारी मूर्तां मारतां दी गल करके खीर प्रगट गुरां कीते। कह लगे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकिया ते आवाज आई कागज छड्ड, बुरश छड्ड, कलाकारी चंगी गल है, पर कलगी वाले दी छवि एक अमृतधारी सिख दे हिरदे विच प्रगट होंदी है। वो अंदर बैठदा है, केवल कागजां तक सीमित नहीं। ते कहंदा मन विचों आवाज आई चल गुरु गोबिंद सिंह तां कह के गए ने कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, हों खालसे का खालसा मेरो ओत पोत सागर बुंदेरो। उस धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमृत दी दात दे के सानू आत्मिक जीवन बख्शिया। अंदर दी गुलामी कट दिती वकारां दी, बाहरों शस्त्र पकड़ा के गुलामी कट दिती जालमां दे जरवाणियां दे हमले। सतगुरु कृपा करे। भाई साहब ने भी अनाउंसमेंट किया है, प्रेरणा एक तुहाडे चरनां च बेनती है, जिन्हां अमृत दी दात नहीं लई अमृत छक के बाणी दा अभ्यास। पर एक बेनती जे जिन्हें नहीं जे छकिया ना, नफरत ना करियो, मेरी सिर्फ एक बेनती है, क्योंकि वो बंदा आ रहा है। आप उद्यम करिए, अपना जीवन इहो जिहा कमाइए कि वो खुद ब खुद एक दिन कह भी सिख इहो जिहा। इस तरह है ना कि जे 1 रुपया, मैं अक्सर उदाहरण देना, 1 रुपया $1 थले डिग पवे ते बंदा किड्डे सोहने सूट बूट पाए होण झुक जांदा चुकन लई, क्योंकि डिग्गा मैं झुकां। जे एक नोट डिगदा है एडा वड्डा शरीर झुक जांदा उहनूं चुकन लई। ते प्यारिओ जिहड़ा बंदा जिंदगी तो डिग पिया ना, थोड़ा जिहा किते परोपकारी झुक के उहनूं चुक लवे ते सचमुच वो खड़ा हो जाएगा, फिर डिगेगा नहीं। वो झुकना निमरता है, वो निमन गुण है। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन इन्ने दिन आप जी की सेवा की। ते एक संक्रांत वाले दिन उस दिन आप वैसाख के महीने की विचार करांगे, तो उस दिन भी थोड़ा जिहा अमृत के संबंध में होर आप जी के समक्ष बेनतियां करनियां। भाई तुहाडे चरनां च बेनती, जो श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा की गल आप जी ने की है, मालक कृपा करे तुसी इन्हां बचनां नूं दृढ़ता नाल कमाई जाओ ते तुहाडी सेवा विच सतगुरु साडे तो सेवा लई जाए। वाहिगुरू जी का खालसा।